Hello, my dear children. How are you all? I hope you are doing very well at your home. So, students, last week we discussed part first of your chapter number 4, The Enemy, written by Pearl S. Buck. So, how beautifully she has written this chapter, you might have the idea by reading the first part of this chapter video. So, let's recall that first. So, this story, the protagonist of the chapter is Dr. Sadao, who was a famous surgeon and scientist surgeon, or we can say surgeon and doctor of Japan. Fine. And it was a scene when America and Japan was at loggerheads. And one day, one fine evening, when Hannah, wife of Dr. Sadao, and Dr. Sadao both were sitting in the balcony of their house, and they saw something foggy, some man type of figure. It was actually a shadow of an injured US Navy soldier. Students, if you don't know this story, please go through the first part, only that you will be able to continue how they identify that the man is an injured prisoner of war, and he was having a bullet mark on his back, and how Dr. Sadao filled that with the sea moss. Fine. And what was the confusion? The confusion was that what to do of this man, either to put him back into the sea or to take him at the home. Both situations were critical, because if they put that man in the sea, then he will surely die, and if they took that man to the house, then they will be in problem. Why? Because it was the time of World War, and Japanese army will not allow at all to shelter a prisoner of war. So at the sea coast, they were discussing what to do, and both of them were not able to put back that man in the sea. So the final decision that they made is to take that man to the house. Though they are doubted, though they are hating that man, that American prisoner. Why? Because a patriotic type of feeling they were having, that this is the time of World War and Americans are killing our soldiers, so how can we help a man? But out of being a doctor, their inner conscience are not allowing them to do so. So they made a plan that we'll take this man to the house, and we'll answer the servants that once it is treated, it is cured, we will hand this to the army. But both of them neither doesn't know what to do, and they are totally confused. The only step they have decided is to take that man at home. So page number 29, let's start from the top. We must simply tell them, this paragraph we have taken in earlier video also, once again I am taking this. We must simply tell them that we intend to give him to the police. Them here is the servants of the house. So Hannah is saying that Sadao, we must simply tell them, we will tell the servants that we intend to give him to the police. We must think of children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over a prisoner of war. So यहाँ पे हना डॉक्टर सदाव को कह रही है, डॉक्टर सदाव, अगर हमने इस प्रिजनर ऑफ वॉर को आर्मी को हैंड ओवर नहीं किया, इसे अपने घर में रखा, तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, और जिसकी वजह से हम सब प्रॉब्लम में फंस जाएंगे. Certainly, Sadao agreed. I would not think of doing anything else. So डॉक्टर सदाव कहते हैं ऑब्वियसली हम ऐसा ही करेंगे, इसे हैंड ओवर करेंगे, इसके अलावा तो मैं कुछ और सोच भी नहीं सकता. बस ये है कि बीइंग ए डॉक्टर मेरे को इसका एक बार इलाज करने दो, उसके बाद कोई सेकंड थॉट तो दिमाग में है ही नहीं, जैसे ये ठीक होगा हम इसको हैंड ओवर कर देंगे. Thus agreed. अब दोनों इससे अपना उनका अग्रीमेंट हो जाता है. टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन. बेटा वो सी कोस्ट पे, जहाँ पे वो उनको बेहोशी की हालत में, अनकॉन्शियस स्टेट में उन्हें मिला है, वो वहाँ से उठा रहे हैं. अभी तक के चैप्टर में जो पूरा सीन चला है वो सी कोस्ट पर चला है, कि किस तरीके से वो वहीं पे बातें कर रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें. अब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने उसको लिफ्ट किया. लिफ्ट मतलब उठाया. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it only feathers and skeleton. कहते जब उसको उठाया ना, तो वो बहुत लाइट वेटेड था, बिल्कुल एक फर की तरह, एक पत्ते की तरह, या एक सॉफ्ट कोई भी चीज़ आप लगा लो, कॉटन लगा लो, क्योंकि वो हाफ स्टार्व्ड काफ़ी टाइम से. अब नेचुरल सी बात है, वो प्रिजनर ऑफ वॉर है, कितने दिन से वो भागा हुआ है, कब उसको गोली लगी है, कितने दिन से वो पानी के अंदर, सी के अंदर गिरा हुआ है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है. सो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर बिल्कुल भी वेट नहीं था, और वो बिल्कुल स्केलेटन की तरह हल्का फुल्का उन्हें लग रहा था. सो हिज आर्म हैंगिंग, दे कैरीड दैम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस. आर्म्स हैंगिंग जैसे होता है ना,
एक साइड से एक ने राइट हैंड अपने शोल्डर पे रखा, एक ने लेफ्ट हैंड अपने शोल्डर पे रखा, और इस तरीके से वो उसे बैक डोर से, साइड डोर से अपने घर के अंदर ले गए। देखो फ्रंट डोर से नहीं लेकर गए, बैक डोर से लेकर गए। क्यों? क्योंकि अभी घर में जो सर्वेंट्स हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए। अगर घर में सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते तो वो फ्री थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें, अपने घर का दरवाज़ा बंद करते, उसका ट्रीटमेंट आराम से करते। बट सर्वेंट्स आर देयर एंड दे हैव टू आंसर दैम ऑल्सो। दिस वॉज द बिग प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ दैम दैट दे हैव टू टैकल। This door opened into a passage and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. अब पीछे के दरवाजे से जो एक घर का ये कह सकते हैं बैक डोर है, वो एक रूम की साइड जाता है सीधा वो रास्ता, मतलब ज़्यादा वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है, मतलब अननोटिसिंगली वहाँ से जा सकते हैं। तो वहाँ से वो उसको एक एम्प्टी बेडरूम में लेकर गए, एक खाली रूम। किस चीज़ का रूम था? देखो अपने जनरली नहीं होता है घर में ऐसा, लेकिन आपके जो ये यूरोप या बाकी जो कंट्रीज़ हैं इनमें क्या होता है, प्रिवेसी बहुत होती है। आपका हर किसी का एक अपना सेपरेट रूम और विदाउट डिस्टर्बेंस, और इस तरीके से हर किसी का अपना एक रूम होता है। तो वो जो रूम था जो अभी खाली है वो किसका है? इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर। ये सदाव के फादर का रूम हुआ करता था, सदाव के फादर इसमें रहते थे। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और उनकी डेथ के बाद ये रूम जो है वो यूज़ नहीं हुआ है। यानी कि अपने फादर की याद लगा लो, या उनका सारा सामान जो है वो डॉक्टर सदाव ने वहीं पे रखा हुआ है, उस रूम के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं की हुई। सो इट वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी। फाइन। दे हैड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। अब उन्होंने क्या किया? दे लेड द मैन, उन्होंने उस आदमी को लिटा दिया। देखो बेटा, मैं एक चीज़ और आपको बोलूँगी, जो जैपनीज़ ट्रेडिशन है ना, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी हमसे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप उनके बेड देखोगे तो वो बहुत लो इन हाइट में होते हैं। जर्नली जो ओल्ड जैपनीज़ ट्रेडिशन है, जैसे अपने इंडिया में भी पहले था कि हम कोट्स पे चारपाई वगैरह पे सोना पसंद करते थे, बेड तो अब ट्रेंड में आए हैं। तो अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ पहले जो ओल्ड जैपनीज़ हैं, ट्रेडिशनल जैपनीज़ है, वो ज़मीन पर सोना पसंद करते थे, एक मैट डाल के ज़मीन पर वो सोते थे। तो ये जो रूम था ये कुछ इसी तरीके का था। तो उस डीपली मैटेड फ्लोर पे उस यूएस नेवी के प्रिजनर को और सोल्जर को वहाँ पे लिटा दिया। एवरीथिंग हेयर हैड बिन जैपनीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन। अब ये जो रूम का सीन है ना, ये सब कुछ ओल्ड जैपनीज स्टाइल में है, जैसे टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, जिससे उस ओल्ड मैन डॉक्टर सदाव के फादर को काफ़ी खुशी मिलती थी। अब आप अपने घर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखो, वो आज के टाइम में हम जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं वो उसमें नहीं कंफर्टेबल फील करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अभी गर्मी के मौसम में वी कैन स्लीप एंड वी कैन सिट इन एसीज, बट आर grandmother grandfather they doesn't like, they want to in fans air or they want to sit outside for fresh air। तो वो एक हैबिट होती है जो हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सब कुछ ओल्ड जैपनीज स्टाइल में था जो उसको अच्छा लगता था। और अगर आपको चैप्टर थोड़ा सा याद है तो अब मैंने आपको बताया था डॉक्टर सदाउस फादर वॉज अ टिपिकल जैपनीज who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed। देखो आ गई वही बात, कभी भी वो अपनी लाइफ में कभी चेयर पे नहीं बैठे थे और ना ही वो कभी फॉरेन बेड पे, यानी कि जो भी ट्रेडिशनल ज़मीन पे बैठना, ज़मीन पे सोना, ये सारा उनको जो जैपनीज़ का कल्चर था अपना वो फॉलो करते थे। हैना वेंट टू द वॉल कबर्ड एंड स्लिड बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट। अब हैना जो है वो क्या करती है, कबर्ड के पास जाती है एंड स्लिड बैक अ डोर। स्लिड बैक इन अ डोर, देखो दो तरीके के कबर्ड्स होते हैं, अलमारी होती है, एक जिनको हम अपनी साइड से पुश करके उनको ओपन करते हैं और एक तो स्लाइड वाला कि हम उनको स्लाइड करके खोलते हैं। तो इसी तरीके से उसने स्लाइड किया और उसने क्या किया, वहाँ से एक सॉफ्ट क्विल्ट रजाई वहाँ से निकाली। शी हेजिटेटेड, वो रजाई उसने निकाल तो ली कबर्ड से, लेकिन अब वो थोड़ा सा हेजिटेट होती है। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर सिल्क एंड द लीनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। ये थोड़ा सा आप घर में अपनी सिस्टर का, अपनी मदर का ऐसा नेचर देखते होगे आप कि कोई चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती है तो उसको यूज़ करने में वो थोड़ा सा हेजिटेट होती है। तो वही हैना का यहाँ पे था कि वो जो क्विल्ट थी ना, रजाई थी, उसका पूरा फ्लावर सिल्क और वो प्योर सिल्क की बनी हुई थी और वो नहीं उस प्रिजनर को देना चाहती थी। क्यों नहीं देना चाहती थी, क्यों हेजिटेट हुई वो उसको उठाने में? ही इज़ सो डर्टी शी ममर्ड इन डिस्ट्रेस। और वो थोड़ा सा बड़बड़ाती है, धीरे से बोलती है, अरे यार ही इज़ सो डर्टी, और ये जो क्विल्ट है, जो रजाई है, ये वाइट कलर की है, ये सिल्क की है, अगर मैंने ये इसको दे दी तो ये पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी।
येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव एग्रीड। अब वो जो ममर्ड कर रही थी, धीरे धीरे बोल रही थी, है ना, डॉक्टर सदाव ने सुन लिया और डॉक्टर सदाव कहता है यस यस, बेटर है कि पहले इसको थोड़ा सा साफ़ किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उसका ट्रीटमेंट करना है तो एटलीस्ट उसको पहले वॉश करना पड़ेगा। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। तो वो डॉक्टर सदाव हैना से कहते हैं, है ना, अगर तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसे वॉश कर देता हूँ। आई कैन नॉट बियर यू टू टच हिम, शी सेड। देखो बेटा, हेट भी है और एज अ डॉक्टर हमदर्दी भी है, दोनों चीज़ें चैप्टर में चलेंगी। मतलब वर्डिंग से ये शो कर रहे हैं कि हमें इस आदमी से नफरत है, वी डोंट लाइक हिम, लेकिन जो भी उसके लिए कर रहे हैं वो एक ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। तो आप देखो, अब है ना एकदम से क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं चाहती कि तुम इसे टच भी करो। we shall have to tell the servant he is here. I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. है ना, कहते नहीं नहीं तुम इसे टच नहीं करोगे, हम सर्वेंट्स को बता देते हैं कि हम ऐसे ऐसे एक इंजर्ड सोल्जर को घर में लेकर आए हैं, और मैं यूमी को बोल देती हूँ। यूमी क्या है? यूमी एक्चुअली केयर टेकर है उनके बच्चों की। डॉक्टर सदाव के 2 बच्चे आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया गया था, तो यूमी जो है वो उनकी टेक केयर करती है। तो कहते हैं मैं यूमी को जाके बोलती हूँ कि वो बच्चों को फ्यू मिनट्स के लिए अकेला छोड़ दे और इसे वॉश कर दे, यानी कि तुम इसे टच मत करो, सर्वेंट्स इसे वॉश करेंगे। सदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट, थोड़ी देर डॉक्टर सदाव सोचते हैं। लेट इट बी सो, ही अग्रीड। कहते हैं चलो ठीक है, सर्वेंट्स को बुला लो। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। तो एक काम करो, तुम यूमी को जाके बताओ इस सोल्जर के बारे में और मैं बाकी सोल्जर्स को बाकी सर्वेंट्स को बता देता हूँ। इससे ये पता चलता है कि 3-4 सर्वेंट्स उनके घर में थे। तो अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, उनको बताना। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टॉप एंड फील हीज पल्स। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे वहाँ से, अटर होता है कंप्लीट, पैलर पीलापन, जो उस अनकॉन्शियस मैन जो वहाँ पे लेटा हुआ था उसका पीला पड़ा हुआ चेहरा, उसको जब डॉक्टर सदाव ने देखा तो उसका जो कहते हैं ना एक हमदर्दी, जाने से पहले उसने उसकी पल्सेस को फील किया। डॉक्टर है, पल्सेस चेक करेगा। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। फेंट मतलब बहुत धीरे धीरे उसकी धड़कनें या पल्सेस जो थी बहुत स्लो चल रही थी, बट येस ही वॉज अलाइव। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, द हर्ट टू वॉज येट अलाइव। आप समझ सकते हो सारा एग्जामिनेशन जो एक डॉक्टर करता है, पल्सेस कैसे देखता है, हार्ट बीट कैसे चेक करता है, वो सब उसने किया। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड। डॉक्टर सदाव कहते हैं ये मर जाएगा अगर जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन नहीं हुआ। कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। और डॉक्टर कहता है खैर मरना तो इसने वैसे भी है। क्यों बोला बच्चों उसने ऐसा कि अगर डॉक्टर सदाव उसका ऑपरेशन करके उसको कैसे बचा लेते हैं, अगर वो बच भी गया तो वो एक एनिमी कंट्री में, उसको बाद में अगर आर्मी को हैंड ओवर करेंगे तो वो जब भी मरेगा। तो डॉक्टर सदाव कह रहे हैं मरना तो इसने वैसे भी है, बट कोई बात नहीं। हैना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, वॉट इफ़ ही शुड अलाइव। देखो बेटा, इस चैप्टर में एक प्रॉब्लम हो रहा है, इनके एक्शंस और इनके वर्ड्स ना मैच नहीं करेंगे पूरे चैप्टर में। आप प्लीज़ इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार कह रही हूँ। उनके मन में उसको हेट्रेड बहुत है, नफरत बहुत है कि ये अमेरिकन है। मैंने एक पाकिस्तानी सोल्जर या चाइनीज़ सोल्जर का आपको एग्जाम्पल दिया था, कितनी हेट्रेड हमारे मन में होगी उनके लिए। लेकिन बोल रहे हैं दैट वी आर नॉट लाइकिंग, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। वो एज अ डॉक्टर और एक वो काइंड ह्यूमन बीइंग के नाते उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब घर में ले आए, फिर भी है ना क्या कह रही है, प्लीज़ उसको बचाने की कोशिश मत करना, अगर ये बच गया तो क्या होगा। कहता है ये मर जाए वही ठीक है, बच गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, हम तो फंसेंगे, इसने तो फिर भी मरना ही है। वट इफ़ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाइड। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। अब डॉक्टर सदाव कहता है अरे अगर बेचारा मर गया तो क्या होगा, और वो उस मोशनलेस मैन की साइड देख रहा है। यानी कि एक डॉक्टर का हार्ट, एक डॉक्टर का प्रोफेशन उसे अलाउ नहीं कर रहा कि वो उसे मरने दे। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। अब डॉक्टर सदाव कहते हैं कमाल का इसका इम्यूनिटी सिस्टम है, कमाल की इसके वाइटलिटी पावर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कुछ, वरना इतने घाव होने के बाद और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन होने के बाद तो इसे अब तक मर जाना चाहिए था। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25। और डॉक्टर सदाव कहते हैं इसकी तो एज भी मुश्किल से 25 साल इसकी एज होगी, इसकी तो एज भी ज़्यादा नहीं है, बहुत यंग है ये। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हैना आस्क्ड। हैना कहती है तुम्हारा मतलब है कि ये ऑपरेशन से मर भी सकता है।
यस, सदाव सेड, कहते हैं यस सर्जरी सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, नेचुरल सी बात है बच्चे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखो हैना का रिस्पॉन्स यहाँ पे हमेशा आपको डाउटेड मिलेगा बेटा। अभी तो क्या कह रही थी, प्लीज़ डोंट सेव, इसे बचाओ मत, अगर ये बच गया तो। जब डॉक्टर सदाव ने ये कहा कि ये तो 25 साल का भी नहीं है और पता नहीं सर्जरी में क्या होगा, तो वो परेशान हो जाती है, कहते हैं क्या ये सर्जरी से मर भी सकता है। हैना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिडंट आंसर सदाव टर्न्ड अवे। जब डॉक्टर सदाव ने कहा कि यस मर भी सकता है, तो उसने डॉक्टर सदाव को बड़ा डाउटफुली देखा। क्यों? क्योंकि उसे अपने हस्बैंड पे फुल कॉन्फिडेंस था। उसके हस्बैंड एक इतने अच्छे सर्जन और डॉक्टर थे कि उनके हाथों से बहुत रेयर ऐसा होगा कि कोई सर्जरी अनसक्सेसफुल होगी। अब डॉक्टर सदाव उसे कोई जवाब नहीं देते और वो टर्न करते हैं। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड। अब डॉक्टर सदाव ना फॉर्म में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, कहते किसी भी कीमत पे बस कुछ ना कुछ इसके लिए करना है। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले इसको साफ करो, अब इतना टाइम नहीं है कि हम इतने बातें करते रहें और सब कुछ डिसाइड करते रहे। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हैना केम बिहाइंड हिम, और वो फटाफट से रूम से बाहर निकलते हैं और हैना भी उनके पीछे पीछे घूमती है। अब बेटा यहाँ पे एक जैपनीज़ कल्चर की मैं और आपको स्पेशलिटी बताती हूँ। ये लोग ना वॉक बहुत फास्ट करते हैं, एनर्जेटिक बहुत है, ये हमारे इंडियंस की तरह नहीं है जो थोड़ा सा स्लो मोशन में काम करे। मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ इंडियंस को, बट मैं जैपनीज़ की यहाँ पे स्पेशलिटी बता रही हूँ। दे यूज़ टू डू एवरी वर्क वेरी फास्ट। He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here, he was her enemy, a menace living order. तो हैना क्या करती है, हैना भी डॉक्टर सदाव के पीछे पीछे जाती है। शी डिडंट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वो रूम के अंदर वाइट मैन के साथ अकेले नहीं रहना चाहती, यानी कि जहाँ डॉक्टर सदाव अगर रूम में एंटर करेंगे तो ही हैना करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। और कहते हैं जब से उसने अमेरिका छोड़ा है, जब से वो अमेरिका से वापस आई है जापान में, उसके बाद वो किसी अमेरिकन से नहीं मिली है। और कहते हैं यहाँ पे ये उसका एनिमी है और ये इनके लिए एक प्रॉब्लम लेकर आया है और कुछ भी नहीं लेकर आया। और है ना, बस उससे हेट भी कर रही है और उसको बचाने की कोशिश भी कर रही है। शी टर्न टू द नर्सरी। नर्सरी बेटा, जैसे नर्सरी हम क्लास मत यहाँ रिजेंबल करना, छोटे बच्चों को जहाँ पे खेलने की जगह बनाते हैं, रूम बनाते हैं छोटे बच्चों का, स्पेशली छोटे बच्चों का, जहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ हों, स्विंग्स हो, तो उसको हम नर्सरी बोलते हैं। तो वो नर्सरी में गई और वहाँ जाके उसने आवाज़ लगाई, यूमी। But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. अब देखो उसका जो बेटा है वो सिर्फ 3 months old है। तो उसने बाहर से आवाज़ लगाई यूमी, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली, इसलिए हैना को रूम के अंदर जाना पड़ा और थोड़ी देर बच्चों को पास बैठना पड़ा, उनको शांत करना पड़ा। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, यूमी कम विद मी। बच्चों को कंसोल करके, क्योंकि अपनी मदर को देख के बच्चे पीछे जाना नेचुरल सी बात है, रोएंगे, या फिर जो उसकी डॉटर है वो तो बड़ी है एज में, तो वो वहाँ बैठती है थोड़ी देर और यूमी से कहती है धीरे से, यूमी कम विद मी। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, ही इज़ रेडी। ही इज़ रेडी मतलब ही इज़ फीलिंग स्लीपी। तो यूमी कहती है एक बार ज़रा मैं बेबी को सुला देती हूँ, ही इज़ अबाउट टू स्लीप, उसके बाद मैं आती हूँ। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. अब क्या करती है हैना, जो है वो शांत खड़ी हुई है वहाँ पे, वो कुछ भी शो नहीं कर रही, वो अपने बेबी बॉय को गोद में लेती है और यूमी जो है वो उसका बेड लगाती है और उसको सुला देती है। देन हैना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। उसके बाद जो हैना है वो क्या करती है, किचन में जाती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड दैम। अब किचन में तो बेटा कुछ और ही सीन है। आपको याद है ना उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि तुम जाके यूमी को बता दो और डॉक्टर सदाव बाकी सर्वेंट्स को बताने वाले थे। तो डॉक्टर सदाव ने बता दिया बाकी सर्वेंट्स को उस अमेरिकन सोल्जर के बारे में सॉरी। तो वो सारे ना काफ़ी घबराए हुए थे, फ्राइटेंड थे, जो अभी अभी उनके मास्टर उनको बता कर गए। द ओल्ड गार्डनर, देखो सर्वेंट्स में कौन कौन थे, एक यूमी जो चाइल्ड टेक केयर करती थी, दूसरा द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स। वो इतने परेशान थे कि मतलब पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स, यू नो इट वेरी वेल व्हाट डज इट मीन। तो वो काफ़ी हैरान और परेशान उन्हीं बातों पे सोच रहे थे, अरे ये हमारे ओनर ने आज कर क्या दिया, एक एनिमी सोल्जर को घर ले आए। द मास्टर ought नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन,
ही सेड ब्लंटली टू हैना, ब्लंटली होता है स्ट्रेट फॉरवर्डली। अब देखो डॉक्टर सदाव के सामने तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोले, लेकिन जब हैना किचन में आई ना तो उनका गुस्सा बाहर आ गया। और जो ओल्ड गार्डनर है वो क्या कहते हैं, द मास्टर ओट नॉट, देखो मस्ट नॉट यूज़ नहीं किया, ओट नॉट, मास्टर को बिल्कुल भी उस वाइट मैन का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। द ओल्ड मैन ओट टू डाई, उसको मरना ही होगा उस वाइट मैन को। फर्स्ट ही वो शूट, अब देखो पहले उसको गोली लगी, देन द सी कॉट हिम, उसके बाद वो समुद्र में फंसा, एंड वुंडेड हिम विद हर रॉक्स, और सी ने भी उसे अपना चट्टानों से, अपने पत्थरों से उसे घाव दिए। इफ द मास्टर हील व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। अब भाई इनकी तो अपनी अलग ही थ्योरी है भाई साहब की, ओल्ड गार्डनर की। कहते हैं कि अगर भाई इसको बचा दिया, इस यूएस नेवी के इस प्रिजनर को बचा दिया, तो जो सी ने किया और जो गन ने किया, गन ने क्या किया, गन ने उसे गोली मारी, और सी ने क्या किया, उसको और ज़्यादा टॉर्चर किया, तो वो दोनों हमसे बदला लेंगे अगर हमने इसको बचाया तो। ये एक सुपरस्टिशियस और एक पुराना ख्यालात का आदमी है और बहुत गुस्सा है, और सारा गुस्सा उसका हैना पे निकल रहा है। आई विल टेल हिम वट यू से, हैना रिप्लाइड कर्टियसली, हैना बड़ा सॉफ्टली पोलाइटली कहती है ठीक है, मैं डॉक्टर सदाव को बता दूंगी जो भी तुमने कहा। देखो बेटा अभी वो सर्वेंट्स को ना ज़्यादा गुस्से में बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उनको सर्वेंट्स को किसी तरीके से मनाना है, किसी तरीके से उनको अपने फेवर में रखना है। अगर ज़्यादा उनके साथ जिद बहस हो गई, झगड़ा हो गया, तो जाके सीधा कंप्लेंट कर देंगे। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड although she was not superstitious as the old man was। कहते हैं ना भी बहुत डर गई कि भाई इनका रवैया तो कुछ ठीक नहीं है, ये तो हमारे फेवर में आने वाले मुश्किल लग रहे हैं, तो पता नहीं अब क्या होगा। Could it ever be well to help an enemy? अब हैना के दिमाग में ना, मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रही हूँ ना, हैना का रोल जो है ना बहुत डबल रोल मिलेगा आपको चैप्टर में। 1 मिनट में वो उसके अगेंस्ट हो जाएगी और 1 मिनट में वो उसकी हेल्प करने लगेगी। तो खुद से सोचती है कि क्या इस एनिमी की हेल्प करना ठीक रहेगा। Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was। और ये सब कुछ सोचते उसने यूमी को बोला कि गर्म पानी की बकेट लेकर आओ और फटाफट से उस रूम में जाओ। She went ahead and slid back the partitions। तो वो आगे आगे चल रही है और दरवाजे खोल रही है। Sada was not yet there। Yumi following put down her wooden bucket। यूमी उसके साथ है, पानी की बाल्टी उसने हाथ में ली हुई है। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन। अब यूमी क्या करती है, उस वाइट मैन के पास जाती है। अब सीन को समझने की कोशिश करो, एक ड्रामा की तरह चल रहा है कि यूमी उस वाइट मैन के पास गई। व्हेन शी सो हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबर्नेस। अब सर्वेंट है, बहुत ज़्यादा ओपनली तो कुछ बोल नहीं सकती, तो कुछ बड़बड़ाई वो। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, शी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ। तो यूमी कहती है मैंने कभी भी किसी वाइट मैन को वॉश नहीं किया है, मतलब सर्व नहीं किया है, या एज अ कुछ भी लगा लो आप यहाँ पे। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी, और ये तो इतना गंदा है, मैं नहीं इसको साफ करने वाली हूँ बिल्कुल भी। हैना क्राइड एट हर सीवियरली, यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू। अब जब वो इस तरीके से बोलती है तो हैना थोड़ा सा ऑर्डरली, बॉसीनेस में उसे जवाब देती है, जो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बोला है, जो तुम्हें ऑर्डर मिला है वो तुम करो। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid। अब जैसे उसने ये बोला ना, यूमी ने तो भाई इतने गुस्से से, इतने रेजिस्टेंस से उसकी तरफ देखा हैना की साइड, कि हैना जो थी वो घबरा गई कि ये क्या, मतलब एकदम से उसका तो चेहरा ही बदल गया। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन्ड, फिर उसने सोचा रे गुस्से से नहीं बात करनी, इनसे तो थोड़ा प्यार से बात करनी है, अदरवाइज तो कंप्लेंट हो जाएगी। वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी। अब हैना कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू द सेंस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। और कहते हैं देखो हमारी बात को समझो, हम सिर्फ इसको ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद हम इसको आर्मी को हैंड ओवर कर देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सैड। यूमी कहती है देखो मेरे को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट्स नॉट माई बिजनेस। मैं एक पुअर इंसान हूँ, मेरे को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि तुम इसको ठीक करके पुलिस को हैंड ओवर करते हो या कहाँ करते हो। देन प्लीज़, हैना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ऑन वर्क। तो कहती है प्लीज़ अपना काम करो फिर। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और यूमी जो है वो उस रूम से चली जाती है। यानी कि बच्चों एक बात तो श्योर हो गई है कि यूमी ने मना कर दिया कि वो उस वाइट मैन को साफ नहीं करेगी, यानी कि वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेगी।
बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन। जो हैना अभी तक कोशिश कर रही थी कि वो वाइट मैन उस रूम में ना रहे अकेले, अब वो वहाँ पे है। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर येट यूमी स्टबर्नेस नाउ सब्सटेन्ड हर। स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फायर्सली। अब चली गई, जब बोल रही है उसके सामने तो बड़ा प्यार से उसके सामने पेश आ रही थी, अब कहते कितनी स्टूपिड सी यूमी है। शी मटर्ड, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन? कहते क्या है, एक आदमी तो है। एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, और बेचारा एक हेल्पलेस मैन है, ये क्या है, एक इंसान ही तो है, तो क्या दिक्कत थी अगर वो इसको साफ कर जाती तो। मतलब खुद को कन्विंस कर रही है वो। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स। रग्स होता है बेटा फटे हुए कपड़े, अननोटेड यानी कि खोल देना। दैट कैप्ड द वाइट मैन कवर्ड। अब उसने उसके क्लोथ्स को, जो फटे पुराने से कपड़े हैं, उनको थोड़ा सा रिमूव करके उसको साफ करना शुरू किया। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. अब सिस्टम आप समझो, वो गर्म पानी में टावल को डिप करती और उसके फेस को साफ करती। द मैन स्किन दो रफ with exposure was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. अब जब उसको साफ़ किया, अब बेटा अमेरिकन तो आपको पता है वैसे ही बहुत फेयर होते हैं कलर में, तो जैसे ही साफ़ किया तो उसका एकदम से फेयर स्किन जो थी वो नज़र आने लगी। और हैना ने सोचा कि कितना फ़ाइन टेक्सचर है इसके स्किन का, जब ये छोटा बच्चा होगा तो इसका स्किन बहुत अच्छी होगी, बहुत फेयर होगी कलर में, यानी कि काफ़ी इनोसेंट वो उन्हें लग रहा था। While she was thinking these thoughts, thought not really linking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. So upper half body का उसने अच्छे से उसको clean किया, but she dared not turn him over. Where was Sada? Now her anger was ebbing. Ebbing is coming out. अब साफ कर रही है, सारे थॉट्स उसके दिमाग में भी चल रहे हैं। अब उसको अचानक से आ रही है, डॉक्टर सदाव कहाँ रह गए हैं। And she was anxious again and she rose wiping her hands on the wrong towel. अब देखो बेटा, वो खड़ी होती है बड़े गुस्से में और अपने हैंड्स को क्या करती है, साफ करती है ऑन द रॉन्ग टावल। रॉन्ग टावल इन द सेंस कई बार होता है 2-3 टावल रखे होते हैं, हैंड पोंछने वाला दूसरा होता है और वो किसी दूसरे ही टावल से साफ कर देती है। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, और वो क्या करती है, दोबारा से उसको रजाई उड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। सदाओ शी कॉल्ड सॉफ्टली, और धीरे से बोलती है सदाओ। तेज क्यों नहीं बोलती बेटा, एक तो घर की कंडीशन ऐसी नहीं है, दूसरा बच्चे घर में सो रहे हैं। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड। अब देखो बेटा, जैसे ही वो बोलती है धीरे से डॉक्टर सदाओ, तो उसका बोलना और डॉक्टर सदाओ का वहाँ पे एंटर करना साइमल्टेनियसली साथ साथ ही होता है। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट, यानी कि हैना का दरवाज़ा खोल के रूम से बाहर जाना और डॉक्टर सदाओ का एंटर करना, दोनों काम एक साथ हुए थे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। शी सो दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स एमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट। अब डॉक्टर सदाव आ गए अपनी फुल प्रिपरेशन में, फॉर्म में है डॉक्टर सदाव। क्या कर रहे हैं, एमरजेंसी बैग लेकर आए हैं जिसमें सारे उनके टूल्स वगैरह हैं और अपना कोट वोट पहन के फिट है वो। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। अब ये तरीका देख के और हैना बोलती है, अरे तुमने डिसीजन ले लिया कि तुम इसे बचाओगे। येस ही सेड शॉर्टली, शॉर्टली इन द सेंस ऐसे चलते चलते फटाफट। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टरलाइज्ड टॉवल अपन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एल्कोव एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट। अब देखो बेटा, इसको समझो। अब डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, टर्न हिज बैक टू हर, यानी कि हैना को अवॉइड करके जाते हैं, एंड अनफोल्डेड अ स्टरलाइज्ड टावल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनामा एक्लोव। टोकोनामा एक्लोव हम कह सकते हैं, जैसे हमारे बेड के साथ में एक साइड टेबल होता है, साइड टेबल के पास हम कोई फ्लावर वगैरह रख के हम उसमें अरेंजमेंट कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से हटा के उस टेबल को यूज़ किया, उसके ऊपर उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रखा। फेच टावल्स ही सेड, और कहते रहे टावल पकड़ो। शी वेंट ओबीडियंटली। अब देखो बेटा, अब वहाँ पे नर्सिस तो है नहीं जो डॉक्टर सदाव को हर चीज़ पकड़ाएंगी, डॉक्टर सदाव की हर चीज़ में हेल्प करेंगी, हॉस्पिटल तो है नहीं वो, तो वहाँ पे सिर्फ हैना है, सर्वेंट्स उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हैना को ही एक नर्स का काम उसके लिए वहाँ पे करना है। एंड शी वेंट ओबीडियंटली, और बहुत ओबीडियंट चाइल्ड की तरह वो उसकी हेल्प करती है।
but how anxious now to the linen shelves and took out the towels. There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. अब जैसा मैंने आपको बताया वो बेड पे नहीं था, उसको ज़मीन पे लिटाया हुआ था क्योंकि डॉक्टर सदाव के फादर का रूम था वो, और वहाँ पे सब कुछ ट्रेडिशनल था। तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे मैट आसपास, न्यूज़पेपर लगा लो या ओल्ड पीसीज ऑफ टावल लगा लो, वो उसके आसपास बिछा दिए। क्यों बिछा दिए? ताकि सर्जरी करते टाइम कोई भी ब्लड अगर गिरता है इधर उधर तो उससे फ्लोर खराब ना हो। शी वेंट आउट टू द बैक वरांडा वेयर द गार्डनर kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took a armful of them. अब डॉक्टर सदाव तो अपने सर्जरी में लग गए बेटा। अब हैना जो है वो बार बार अंदर बाहर किसी ना किसी काम से घूमती रहेगी। सो शी वेंट आउट टू द बैक वरांडा, वो पीछे जाती है, where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took a armful of them. और गार्डनर जो था वो अपना काम कर रहा था, श्रब जैसे घास के पास वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो सब निकालने के वो काम कर रहा था। But when she went back into the room, she saw this was useless. The blood had already soaked through the packing in the man's wood and had ruined the mat under him. अब जब वो जो उन्होंने वीड्स, गार्डनर ने जो वीड्स निकाल के साइड में रखे हुए थे घास वगैरह साफ़ करके, तो हैना जाके थोड़े से वो लेकर आती है। क्यों लेकर आती है? ताकि वो उस सर्जरी के, जहाँ सर्जरी हो रही है वहाँ आसपास बिछा सके उसे। लेकिन जब वो रूम में आती है तो वो देखती है अरे ये तो वेस्ट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी जो उसका फ्लोर था वो ख़राब हो चुका है। यानी कि डॉक्टर सदाव ने जो अपनी सर्जरी स्टार्ट कर दी थी तो वो ऑलरेडी उसका सारा मैट ख़राब है। ओह द मैट, शी क्राइड। येस इट इज़ रेंट, सदाव रिप्लाइड। है ना, कहते अरे मेरा फ्लोर। तो डॉक्टर सदाव कहते हैं हाँ हाँ ये ख़राब हो चुका है। एज दो ही डिडेंट केयर, हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर। अब देखो डॉक्टर सदाव सब कुछ भूल चुके हैं। डॉक्टर सदाव के लिए रजाई का कवर या मैट या ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो कहते हैं हाँ हाँ ख़राब हो गया, और कहते जल्दी आओ ज़रा मेरी हेल्प करो, इसको टर्न करो। किसको टर्न करो? उस इंजर्ड मैन को। शी ओबेड him without a word and he began to wash the man's back carefully. और जो उसकी बैक वो साफ़ करने लगा डॉक्टर सदाव। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। अब डॉक्टर सदाव तो अपना काम कर रहा है और हैना उससे बातें भी करी जा रही है साइड में खड़े होके। कहते तुम्हें पता है यूमी ने मना कर दिया कि ये वो इसे साफ़ नहीं करेगी। डिड यू वॉश हिम देन, सदाव आस्क्ड। सदाव कहता है अच्छा फिर तुमने इसको क्लीन किया। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइंस मूवमेंट्स। और डॉक्टर सदाव ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के अपनी वाइफ से, हैना से बात करने में बिजी है। काम नहीं छोड़ रहा, काम किए जा रहा है वो अपना, और साथ में उससे बातें भी कर रहा है। येस शी सेड, कहते हाँ मैंने किया। ही डिडंट सीम टू हियर हर बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क। शी वंडर्ड for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. तो डॉक्टर सदाव ना अब सब कुछ भूल चुका है कि ये मतलब एक एनिमी है या फिर क्या करना है, वो बिल्कुल खोया हुआ है और उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता। और ये उसकी हैबिट है कि जब वो काम करने लगता है तो वो बारी सारी बातों को भूल जाता है। और कहते काफ़ी टाइम से वो बॉडीज़ के ऊपर ही काम कर रहा था क्योंकि डॉक्टर था, बहुत सर्जरी कर चुका था, तो इट वॉज नॉट अ बिग डील फॉर हिम। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड। मैं आपको फिर रिमाइंड करवाती हूँ, वहाँ पे नर्सेज नहीं है बेटा, वहाँ पे हैना ही है डॉक्टर सदाव के पास। तो छोटी मोटी जो भी हेल्प चाहिए वो हैना ही उसको करेगी। तो अब डॉक्टर सदाव कहता है यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक। अगर इसको ज़रूरत पड़ी, अगर ये थोड़ा सा होश में आ गया सर्जरी के बीच में, तो तुम्हें इसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। अब एनेस्थीसिया आप सबको पता है क्या होता है, जिसे हम अनकॉन्शियस कर देते हैं इंसान को। आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई। अब डॉक्टर ये हैना कहती है क्या मैं एनेस्थीसिया दूँ? लेकिन तुम्हें पता है मैंने कभी नहीं दिया है। इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली डॉक्टर सर कहते हैं अरे ईजी है, बहुत ईजी है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लोर मोर क्विकली। अब क्या है बेटा, जैसे जैसे वो सर्जरी कर रहा है खून और ज़्यादा निकल रहा है। ही पियर्ड इन टू द वोंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टनड ऑन हिज फोरहेड। अब आप थोड़ी सी पिक्चर देखो बेटा। अब ये जो डॉक्टर सदाव का फोरहेड इसमें दिखाया गया है,
इसमें इतना क्लियर नहीं है, आप अपनी बुक में देख सकते हो। यहाँ पे टॉर्च, हेड पे टॉर्च बांध के रखी है इन्होंने। तो कहते हैं कि ही पियर्ड इनटू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड। जो उनके फोरहेड पे लाइट लगी हुई थी उससे उसने उस घाव को अच्छे से देखा, अंदर तक देखा। द बुलेट इज स्टिल देयर, और कहता है गोली अंदर ही है। ही सैड विद कूल इंटरेस्ट, नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज। इफ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। और कहते हैं कि अगर रॉक इससे नहीं टकराती और ये घाव इतना ज़्यादा नहीं जाता तो मैं बुलेट को ईजिली निकाल देता। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड। और इसका ऑलरेडी बहुत सारा खून निकल चुका है और बहुत गहराई में जो ये है गोली जो है वो लगी हुई है। एट दिस मोमेंट हैना चॉक्ड, ही लुक्ड अप एंड सो हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। अब सल्फर का कलर आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता है कि किस तरीके से डल होता है। तो कहते हैं एट दिस मोमेंट हैना चोक्ड, इतना ब्लड और इतना खून खराबा देख के तो उसका जो कलर था ना फेस का वो बिल्कुल डल हो गया था, बिल्कुल घबरा गई है ना। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली। अब बेटा देखो, एक नॉर्मल जो हाउसवाइफ है, जो डॉक्टर नहीं है, वो अपने ही घर में अपनी आंखों के सामने किसी की सर्जरी करते हुए देख रही है और इतना सारा खून निकल रहा है, तो उसकी कंडीशन कैसी होगी अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसकी हालत वहाँ पे ख़राब है। तो डॉक्टर सदाव शार्पली कहते हैं अरे यहाँ बेहोश होके मत गिर जाना। He didn't put down his exploring instrument. If I stop now, the man will surely die. और कहता है यहाँ मत गिरना बेहोश होके, क्योंकि मैं सर्जरी बीच में नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टॉप कर दिया तो ये डेफिनेटली यहाँ पे मर जाएगा। She clapped her hands to her mouth. Clapped her hands to her mouth, जैसे हमें वॉमिट आने को हो, आप पिक्चर में भी देख सकते हो। उसने अपने माउथ को कवर किया एंड लीव्ड अप एंड रेंट आउट ऑफ द रूम, और रूम से बाहर चली गई। आउटसाइड द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग। रेचिंग जैसे हम उल्टियाँ करते हैं ना, उल्टियों की आवाज़ आना, उबकाइयाँ, ठीक है, वो आवाज़ें उसे डॉक्टर सदाव को अंदर सुनाई देने लगी। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अपना काम करते रहे। स्टूडेंट, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से डॉक्टर सदाव जो है वो सर्जरी में बिजी हैं और हैना की क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे हैं। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक, ही थॉट। और वो आवाज़ें सुन के डॉक्टर सदाव सोच रहे हैं हैना के लिए यही ठीक रहेगा कि वो अपना पेट खाली कर ले, यानी कि वॉमिट आ गई, ठीक है, नाउ शी विल बी ओके। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफकोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। अब डॉक्टर सदाव कहते हैं मैं तो भूल ही गया था कि हैना ने तो अपनी लाइफ में कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा है। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। तो कहते हैं कि अब डॉक्टर सदाव जैसे उसको बार बार गुस्से से बोल रहे थे, उसको इम्पेशेंटली जवाब दे रहे थे हैना को, वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर सदाव अपने काम में पूरे तरीके से खो चुके हैं, अपनी सर्जरी में फुल बिजी हैं वो। तो वो नहीं चाहते, उनको याद ही नहीं रहा कि हैना का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। दिस मैन, ही थॉट, देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। अब डॉक्टर सदाव कहते हैं पता नहीं इस इंसान को मैं क्यों बचा रहा हूँ। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीड स्विफ्टली। और कहता है ऐसा ही होता है ना बेटा, कई बार हम कोई काम कर रहे हैं फिर हमें एकदम से गुस्सा आता है तो हम उस काम को थोड़ा सा स्पीडली या रफली करने लगते हैं। तो डॉक्टर सदाव थोड़ा स्विफ्टली काम करने लगा गुस्से में कि पता नहीं मैं इस इंसान को क्यों बचा रहा हूँ, और वो जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको थोड़ा सा स्विफ्टली फास्टली मूव करने लगा। इन हिज ड्रीम द मैन मॉन्ड बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। तो अब क्या हुआ बेटा, अनकॉन्शियस स्टेट में वो जो आदमी था जब ये फास्ट इंस्ट्रूमेंट से काम करने लगा तो उसको थोड़ा सा कहराया, थोड़ा सा उसने मौन किया, लेकिन डॉक्टर सदाव ने उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं किया। सिर्फ क्या मटरिंग की, ग्रॉन, ही मटर्ड, ग्रॉन इफ़ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर। कहता है कहराओ और कहराओ, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ ये सब कुछ। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हें बचा क्यों रहा हूँ। यानी कि वो उससे अनकॉन्शियस मैन से ही बात करने लगे। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हैना अगेन, और हैना दोबारा से अपने वॉमिट करके दोबारा से आ जाती है। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। हैना कहती है अच्छा बताओ कहाँ है एनेस्थेसिया, कैसे देना है मुझे। हैना भी पूरी फॉर्म में है भाई अब। सदाव मोशन विद हिज चिन, चिन यानी कि फेस से इशारा किया, एनेस्थेसिया कहाँ रखा है।
इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, ही सैड, द फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टिर। अब डॉक्टर सदाव हिना से कहते हैं, हिना अच्छा हुआ कि तुम आ गई यहाँ पे, इस इंसान ने घूमना मतलब हिलना शुरू कर दिया था। अभी अभी आपको पता है ना किस तरीके से दर्द से चिल्लाया था। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। अब एक बॉटल है उसके हाथ में और कॉटन है, अब रेडी है वो एनेस्थीसिया देने के लिए। बट हाउ शुड आई डू इट, शी आस्क्ड। अब है ना कहते लेकिन क्या करूँ, आगे तो बताओ। सिंपली सैचुरेट द कॉटन, सैचुरेट डिप करना, एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स। कुछ नहीं है, बस कॉटन को इसमें सैचुरेट करो, डिप करो और इसके नाक के पास रख दो। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर अ मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ हिज वर्क, व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल। और कहता है अगर ये गहरी गहरी सांस लेने लगे, बैडली ये ब्रीथ करने लगे, तो थोड़ी सी कॉटन को दूर कर देना। हैना को समझा दिया गया है कि उसको एनेस्थेसिया कैसे देना है। शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। अब वो थोड़ा सा झुकती है यंग अमेरिकन वो कॉटन रखने के लिए उसके नोस्ट्रल्स के पास। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, शी थॉट, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड। कहते अरे इसका चेहरा मतलब कितना बेचारे का फीका पड़ा हुआ है। द मैन वॉज सफरिंग वेदर he knew it or not. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of the prisoners were true. अब उसका फेस देख के, उसके रिंकल्ड लिप्स देखकर वो सोचने लगती है अरे जैसा हम सोचते हैं कि जैसे लड़ाई होती है टू कंट्रीज़ में और कोई दुश्मन आर्मी का सोल्जर हम कैप्चर कर लेते हैं तो उसको टॉर्चर किया जाता है। ये भी आपको पता है कितना उनको टॉर्चर, इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। तो सोचती है कि क्या ये स्टोरीज सच होती हैं, क्या इसको भी इतना ही टॉर्चर किया गया है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर टोल्ड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड। अब देखो हम जब सुनते हैं कि भाई ऐसे उसको मारा गया या उसको ऐसे टॉर्चर किया गया या एनिमी कंट्री ने हमारे इतने सोल्जर्स को पकड़ा है, उसको मारा है, तो लोग कुछ विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट वर ऑलवेज दैट वेन एवर द जैपनीज आर्मीज went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beats his wife cruelly. Though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle of Manchuria, if a man like that could be so cruel to a woman in his power, what he not be cruel to one like this for instance. अब है ना सोचती है वैसे तो हमारी आर्मी के बारे में बोला जाता है कि दुश्मन आर्मी को हम इतना टॉर्चर नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जैसे जनरल टाकिमा। अब ये जनरल टाकिमा कौन है बेटा? डू यू रिमेंबर कि ओल्ड जनरल, उसका सर्जरी, उसकी जो भी प्रॉब्लम थी वो डॉक्टर सदाव ही ट्रीटमेंट कर रहे थे, ये वही जर्नल है। तो कहते वो जर्नल अपनी वाइफ को कितना पीटता है घर में। जब वो अपनी वाइफ को इतना मार सकता है तो वो दुश्मन एनिमीज़ के साथ क्या करता होगा। यानी कि हैना जो है अपने दिमाग में पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर रही है कि इसको भी बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया होगा। शी होप्ड एंग्जियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। और कहती है कि पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट आई होप कि इसको इतना टॉर्चर ना किया गया हो। It was at this moment that she observed deep red scar on his neck just under the ear. अब बेटा उसे प्रूफ भी मिल जाता है कि उस अमेरिकन सोल्जर को जापानीज़ आर्मी ने कितना मारा है और कितना उसको टॉर्चर किया है। वो क्या देखती है, उसके कान के नीचे कोई रेड सा कलर का स्कार है, निशान है। दो स्कार शी ममर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव। अब इशारों पे हम, जैसे मैं आपको लाउड बोल के सारी बातें बता रही हूँ, वो सीन नहीं था ना, तो वो थोड़ा सा इशारों में भी बातें कर रहे थे। तो हैना जो है वो डॉक्टर सदाव का ध्यान देती है, अरे ये निशान देखो इसके कान के नीचे। बट ही डिडंट आंसर। बेटा उसका फोकस तो सिर्फ उस गोली को बाहर निकालना था, उस बुलेट को बाहर निकालना था। तो ये छोटे मोटे स्कार्स उसके लिए मैटर नहीं कर रहे थे। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। अब देखो डॉक्टर सदाव ने जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स उसकी बॉडी के अंदर डाले हुए थे, जिनको वो मूव कर रहा था बार बार, अचानक से कुछ अलग सी आवाज़ आई। जैसे कोई चीज़, लोहे की चीज़ किसी लोहे की चीज़ से टकराती है तो एक आवाज़ आती है स्ट्राइक करने की। तो वो आई आवाज़, डेंजरसली नियर द किडनी। अब देखो वो जो गोली है वो बिल्कुल किडनी के पास है। All thought left him. He felt only the purest pleasure. He probed with his fingers delicately, familiar with every atom of this human body. अब डॉक्टर सदाव हमारे इतने एक्सपीरियंस थे कि उन्हें हमारी ह्यूमन बॉडी का एक एक एटम पता था।
एक एक चीज़ पता थी। तो बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी फिंगर्स को डेलिकेटली मूव करते हुए किडनी के पास से वो गोली को बहुत आराम से निकाल रहे थे। ही इज़ ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी बेटा क्लासेस होती हैं जो MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें उनको एक्सपेरिमेंट्स, उनको बॉडी की सर्जरी कैसे करनी है, बॉडी के पार्ट्स क्या, ये सब दिखाए जाते हैं, तो उनको एनाटॉमी बोला जाता है। प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, और उनके एक प्रोफेसर ने, अमेरिकन प्रोफेसर ने उन्हें सिखाया था, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन, कि ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरी जानकारी ना होना, एक एक वेन, एक एक बोन, एक एक एटम, एक एक मसल, इन सब चीज़ों की जानकारी ना होना एक सर्जन का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा कार्डिनल सिन है। यानी कि बिना बॉडी की कंप्लीट नॉलेज हुए उसे सर्जरी नहीं करनी चाहिए, वो सबसे बड़ा एक तरह से हम कह सकते हैं सिन है। He had thundered at his classes year after year. Thundered जैसे टीचर्स कोई एक सेंटेंस जो बार बार क्लास आफ्टर क्लास, क्लास आफ्टर क्लास, ईयर आफ्टर ईयर आपको बोलता जाए, तो वही काम वो करते थे। अमेरिकन प्रोफेसर बार बार उन्हें याद दिलवाते थे कि ह्यूमन बॉडी की कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। To operate without a complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that is murder. और उनका कंप्लीट सेंटेंस क्या होता था कि बिना कंप्लीट नॉलेज हुए बॉडी की उसको ऑपरेट करने चले जाना एक मर्डर से कम नहीं होता। तो उन्होंने ही उसे डॉक्टर सदाव को सिखाया, और यही रीज़न था कि आज डॉक्टर सदाव को ह्यूमन बॉडी के एक एक एटम के बारे में पता था। इट्स नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाव ममर्ड। अब सदाव उसी से बात करने लगे जिसकी वो सर्जरी कर रहे हैं। माई फ्रेंड, इट्स नॉट क्वाइट एट द किडनी, इट वॉज हिज हैबिट टू ममर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। और कहते हैं डॉक्टर सदाव जब अपने ऑपरेशन में, अपनी सर्जरी में बिल्कुल खो जाते थे, तो वो पेशेंट से बातें करना शुरू कर देते थे। माई फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी। और वो हमेशा अपने पेशेंट्स को माई फ्रेंड ही बोलते थे, और अब वो बिल्कुल भूल चुके हैं कि जिसकी वो सर्जरी कर रहे हैं वो और कोई नहीं, एक एनिमी है। Then quickly with the cleanest and most precise of incision the bullet was out. और बहुत क्लीनली और बहुत माइन्यूटली उन्होंने क्या किया, उस बुलेट को बाहर निकाल दिया। द मैन क्वेयर बट वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। अब जैसे ही वो गोली बाहर निकली वो थोड़ा सा हिला, लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस था। नेवरथलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। अब बेटा नेचुरल सी बात है, अब अनकॉन्शियस स्टेट में या हमें बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारी मदर टंग बाहर आएगी। फाइन, हम कुछ भी बोलेंगे दर्द में तो हम अपनी भाषा में बोलेंगे। तो उसने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोले, और उसने क्या बोला, गट्स, ही मटर्ड चोकिंग, दे गॉट माई गट्स। देखो वो एक सोल्जर है, तो सोल्जर, मेरी हिम्मत देखो, सी माई गट्स। सदाव, हैना क्राइड शार्पली। हैना कहती है सदाव ये तो बोल रहा है। सदाव सेड, कहते रहे चुप। The man sank again into silence so profound होता है deep, that Sadav took up his wrist, hating the touch of it. कहते हैं वो उसकी रिस्ट को चेक करते हैं ऑपरेशन के बाद। There was still a pulse so faint, so feeble होता है weak but enough, बहुत weak, बहुत हल्की उसकी पल्सेस है बट चल रही है। If he wanted the man to live to give hope, और कहते हैं if he wanted the man to live to give hope, तो कहते हैं कि अब इसको अगर जीना है तो इसको एक होप होनी ज़रूरी है। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। भाई पूरी सर्जरी कर दी है, उसको बचा दिया है, गोली बाहर निकाल दी है, और अभी भी क्या कह रहे हैं, मैं चाहता नहीं हूँ कि आदमी बचे। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हैना। हैना जो वही सीख चुकी है एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है, वो तो अपनी फुल फॉर्म में है। तो डॉक्टर सदाव से कहता है अरे बस और नहीं देना है। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. इसको समझो, अब क्या कर रहा है, he turned as swiftly as though, जितना फास्ट वो टर्न हो सकते हैं उतनी जल्दी वो टर्न होते हैं। He had never paused, और ऐसा लग रहा था जैसे वो रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। और क्या करते हैं, अपनी मेडिसिन के बॉक्स में जाते हैं और वहाँ पे एक स्मॉल वायल होती है, एक छोटी शीशी जिसमें दवाई होती है, जिसमें से हम इंजेक्शन को फिल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, उसको वायल बोला जाता है। ये आपने शायद द बर्थ चैप्टर में भी पढ़ा होगा 11th में।
एंड फ्रॉम इट फील्ड अ हाइपोडर्मिक, एक इंजेक्शन उसमें फिल करते हैं, एंड थर्स्ट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और पेशेंट की लेफ्ट आर्म में उसे थर्स्ट कर देते हैं, लगा देते हैं. Then putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. और वो इंजेक्शन लगाने के बाद वो फिर उसके पल्सेस को चेक करते हैं, एक दो बार वो थोड़ा सा मूव करती हैं फीबली, और उसके बाद वो ठीक हो जाती हैं पल्सेस. दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हैना इनसाइड. वो हैना से कहते हैं भाई ये आदमी तो जिएगा, इसमें जिएगा, इसकी तो ज़िंदगी अभी बची हुई है, ये इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है. The young man walked so weak, his blue eyes so terrible, when he perceived where he was. अब देखो बेटा, जब उस आदमी की आँख खुलती है, जब वो होश में आता है, उसकी ब्लू आइज है, फाइन, तो वो घबरा गया एकदम से देख के कि ये मैं कहाँ हूँ. That Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. अब देखो कोई भी सर्वेंट उस रूम में एंटर होने के लिए रेडी नहीं था. अब उसकी टेक केयर जो करनी थी वो हैना को ही करनी थी. तो हैना जो थी वो उसके पास में बैठी हुई है, और उस मैन ने अपनी आंखें खोली और वो एकदम से घबरा गया कि यार ये मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं पता ना कि वो कैसे एक जापानीज़ पोस्ट पे था और कैसे एक जापानीज़ डॉक्टर ने उसे बचाया एंड ऑल. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. अब जब हैना रूम में आई उसके लिए खाना लेकर, तो वो बहुत घबराया हुआ था, और जितनी भी उसके अंदर ताकत बची हुई थी वो ताकत वो अपनी इकट्ठी करके और मतलब वहाँ पे बैठने की कोशिश कर रहा था. डोंट बी अफ्रेड, शी बैग्ड हिम सॉफ्टली. वो धीरे से कहते अरे घबराओ मत. हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड. अब वो समझ तो गया था मैं किसी जापनीज़ के घर में हूँ, और जापनीज़ जो हैं बेटा वो जल्दी से इंग्लिश नहीं बोलते हैं, चाइनीज़ और जापनीज़, फाइन. तो कहता है अरे तुम्हें इंग्लिश आती है. आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड. और हैना कहती है मैं काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका में रही हूँ, इसलिए मुझे इंग्लिश आती है. शी सो दैट शी वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, एंड सो शी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द प्रोक्लेन स्पून. अब प्रोक्लेन स्पून क्या होती है ये समझो. जैसे हम घर में बेटा किसके स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, एक वाइट कलर के बर्तन आते हैं जो डिनर सेट वगैरह होते हैं वाइट कलर के, उसको प्रोक्लेन बोलते हैं. ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट. अब है ना उसको खिलाना शुरू करती है उस प्रोक्लेन स्पून के साथ. वो खाना तो नहीं चाहता अनविलिंगली, बट वो खा लेता है थोड़ा बहुत. नाउ यू विल सोन बी स्ट्रॉन्ग, शी सैड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव्ड टू कम्फर्ट हिम. तो हैना कहती है ना चाहते हुए भी बात ज़्यादा नहीं करना चाहती है, और उसे कहती है कि अब तुम ठीक हो जाओगे, यानी कि उसको थोड़ा सा हौसला देती है. ही डिडंट आंसर, वो जवाब नहीं देता, क्योंकि उस बेचारे को तभी यही नहीं पता कि मैं हूँ कहाँ पे और मेरे साथ अब क्या होने वाला है. व्हेन सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन के थर्ड डे डॉक्टर वहाँ पे आते हैं, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट्स. ब्लडलेस मतलब हिम्मत ना होना बैठने की, वो पूरी कोशिश कर रहा है बैठ के काम करने, बैठने की कोशिश कर रहा है, तो उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल ब्लडलेस हो रहा है. मतलब जैसे डॉक्टर सदाव रूम में एंटर करते हैं बच्चों, तो वो इंसान बैठने की कोशिश कर रहा है उस टाइम. लाई डाउन, सदाव क्राइड, डू यू वॉन्ट टू डाई. कहते लेट जाओ, मरना चाहते हो क्या. He forced the man down gently and strongly and examined the wound. You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. और वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि अगर दोबारा तुमने ये करने की कोशिश की तो तुम अपने आप को मार दोगे, क्योंकि अभी बहुत वीक हो और ऐसी कोई एक्टिविटी मत करो. What are you going to do with me? The boy muttered. अब वो बॉय पूछता है कि भाई तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो. He looked just now barely 17. और कहते हैं आप उसकी अगर शक्ल देखो तो बिल्कुल वो 17 साल का बच्चा लग रहा है. Are you going to hand me over? क्या तुम मुझे आर्मी को हैंड ओवर करोगे. यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस उस आदमी के दिमाग में चल रहा है. For a moment Sadav didn't answer. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. अब डॉक्टर सदाव के पास खुद के पास जवाब नहीं है. अब कहते हैं कुछ नहीं जवाब देते और वो उसे रजाई उड़ा देते. I do not know myself what I shall do with you, he said. डॉक्टर सदाव कहते हैं मुझे भी नहीं पता. I ought of course to give you to the police. कहते हैं of course मुझे तुम्हें पुलिस को देना चाहिए. You are a prisoner of war. No, do not tell me anything. अब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है. डॉक्टर सदाव उसको कहते हैं no, no, do not tell me anything. He put up his hand
as he saw the young man was about to speak. Do not even tell me your name unless I ask it. जब तक मैं तुमसे पूछूँ ना, अपना नाम भी मुझे मत बताना. They looked at each other for a moment, and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. Fine. अब एक दूसरे को देखते हैं वो, और जो यंग मैन है वो बेचारा बहुत परेशान है कि बच तो गया हूँ लेकिन आगे क्या करेंगे मेरे साथ. ओके, he whispered his mouth a bitter line. Outside the door, Hannah was waiting for Sadao. अब कहानी में ट्विस्ट है. अब क्या है बेटा कि ये जो इंसान है, जो ये अमेरिकन प्रिजनर है, इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, इसको खाना खिला दिया गया है, इसको ये समझ में आ गया है कि मैं कहाँ पे हूँ. ठीक है. अब जब डॉक्टर सदाओ उसको थर्ड डे ऑपरेशन के उसको एग्जामिन करके बाहर निकलते हैं तो हैना वहाँ पे खड़ी है. ही सो एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल. और हैना के फेस को देखते ही डॉक्टर सदाओ समझ गए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है. सदाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर. कहते सदाओ, यूमी ने मुझे बताया कि सर्वेंट्स यूँ कह रहे हैं कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे अगर तुमने और इसको यहाँ पे रखा. She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. और कहते हैं सर्वेंट्स इस तरीके की बात कर रहे हैं कि हम काफ़ी सालों तक अमेरिका में रहकर आए हैं, इसलिए हमें अमेरिकन्स ज़्यादा पसंद हैं, जैपनीज़ पसंद नहीं है. It's not true, सदाव said harshly. सदाव कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. अमेरिकन्स हमारे दुश्मन हैं, लेकिन मुझे ऐसा ट्रेन किया गया है कि अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ तो मैं उसे मरने ना दूँ. द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंग्जियसली. अब हैना कहते हैं लेकिन सर्वेंट्स ये बात नहीं समझते. नो, ही एग्रीड. वो कहते हैं हाँ नहीं समझते. नीदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन. ड्रैग्ड ऑन मतलब तनातनी चल रही है, आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से. सर्वेंट्स जो हैं वो बहुत गुस्से में हैं, ओनर जो है वो बड़े परेशान हैं. द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल. और जो सर्वेंट्स हैं ना वो अपने ओनर को ऐसे देख रहे हैं, वॉचफुल, हर एक्टिविटीज़ पे उन पर ध्यान रख रहे हैं. देयर कर्टेसी वॉज एज क्लियर एज एवर बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू होम दे वर हायर्ड. पेयर डॉक्टर सदाओ एंड हैना कहते काम कर रहे हैं जो उनकी ड्यूटी है, लेकिन उनकी आंखों में एक हेट्रेड उस पेयर के लिए, डॉक्टर सदाओ और हैना के लिए साफ नज़र आती है जिन्होंने उसको हायर किया हुआ है. यानी कि अब सर्जरी हो गई है भाई, अब वो उसकी बुलेट निकाल दी गई है, अब वो ठीक है, थोड़े दिनों में रिकवर कर जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप डॉक्टर सदाओ को क्या उठाना है. अब नेक्स्ट स्टेप में डॉक्टर सदाओ क्या करेंगे. अब उसको हैंड ओवर करो या कुछ ना कुछ तो करो. अब सर्वेंट्स भी चुप नहीं बैठने वाले हैं, बहुत दिन उन्होंने वेट कर लिया. देखेंगे हम आगे चैप्टर में क्या होता है.